See, rule of inference. The first rule is the first rule is it is modus ponens. Okay, so first rule is modus ponens. Modus ponens. So what happens here? So if P implies Q, so we have P implies Q. If P implies Q and P implies Q and P, then the result is Q. Okay, this is called modus ponens. This is called modus ponens. For example, if we have if X student study hard, study hard, then he will get A grade. So this is the first statement. Second statement, X study hard. X study hard. So this is the second statement, and its conclusion is X gets A grade. X gets A grade. So just to observe that if P then Q. So the P statement is X study hard. The Q statement is he will get A. So P statement is X study hard and Q statement is he will get A. So just we have to verify that this statement is modus ponens or not. So P implies Q. This is the first statement saying. Now the second statement what says? It is X study hard. So it is P. Now what is the conclusion? This is conclusion. X gets A. So this is the Q. So by modus ponens, the statement is valid. Statement is valid. So through this we check the validity of statement. So statement is valid. By modus ponens, statement is valid. We can also prove the validity of the statement by writing this as a logical expression, propositional logic expression, like the first term. It is P implies Q. This is read as P implies Q and P. This is P implies Q and P, and this is implies Q. So this will be a tautology. This will be a tautology. So I have already told you what is tautology. Tautology is in the last column of the result or in the result, it will all T. All terms are T. Clear? So it will form a tautology. Okay. So when you make the table, we have P, we have Q. Okay. We will form P implies Q. Then P implies Q and P. Then it implies Q. So P implies Q and P implies Q. So when you form the table of this logical statement or these statements, you will get the tautology in the last column. So here all the terms will be T. Okay, you can verify by yourself. So this is modus ponens. Now the second rule is hypothetical hypothetical syllogism. So what it says, so it has if P implies Q, and this is first statement, the second is Q implies R, so the result is P implies R. So this is called hypothetical syllogism. ठीक है? So कैसे बने देखते हैं. For example, if we have, so first statement says if it rains today,
then we will not have party today. So this is first statement. Second statement says, if we do not have party today, then we will have party tomorrow. Then we will have party tomorrow. Okay? This is the second statement. This is second statement. Now, what is the conclusion? Conclusion says, the conclusion is, therefore, if it rains today, if it rains today, then we will have we will have party tomorrow. Okay? So this is the conclusive statement. This is first statement. This is second statement, and this is conclusion. So just to see that, we will compare with if P then Q. So what is P, what is Q, we have to identify. So in the first one, the P statement is, it rains today. It rains today. Now Q statement is, we will not have party today. We will not have party today. This is Q statement. Now what is R statement? We will have party tomorrow. We will have party tomorrow. So what is happening in the first statement? It is saying P implies Q. That means if it rains today, we will not have party today. So this is the first statement. P implies Q. Now what is in second? What is in second? If we do not have party today, then we will have party tomorrow. That means if P then Q, so it is if Q then R. So this is the second statement. So what is the conclusive statement? It is, if it rains today, we will have party tomorrow. That is P implies R. P implies R. So by hypothetical, so it is exactly hypothetical syllogism. So hypothetical syllogism. That's why statement is valid. Statement is valid. So in similar way, we have few more operations, few more rules. I am just writing one by one each. So this was second. The third is addition. Addition of what? So if we have P, we need some Q. So P or Q is by addition. So this is by addition. केवल P पता है हमें, मान लो Q की रिक्वायरमेंट है तो वी कैन ऐड इट बाय यूजिंग और, तो P और Q, दिस इज नोन एज बाय एडिशन. जैसे मान लो Q पता हो हमें, हमें P की नीड है, तो P और Q, तो दिस इज द रिजल्ट. ये अपॉन नहीं है, ठीक है, दिस इज बाय रिजल्ट. क्लियर? एनी डाउट्स? किसी को डाउट तो मुझे मैसेज कर सकता है. किसी को डाउट तो मुझे मैसेज कर सकता है. ओके, सो द फोर्थ रूल इज, दिस इज एडिशन. द फोर्थ रूल इज सिंप्लीफिकेशन. Simplification. So what is simplification? So if we have P and Q, तो अब P और Q में कोई भी मिनिमम हो सकता है. अगर P मिनिमम है तो आंसर P आएगा, और
P एंड Q में अगर Q मिनिमम है तो आंसर Q आएगा। ये अपॉन नहीं है, नॉट डिवीजन। ओके, ये रिजल्ट है, इंप्लाई करता है P एंड Q में। अगर Q मिनिमम होगा तो Q इंप्लाई करेगा, P मिनिमम होगा तो P इंप्लाई करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। नाउ फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल इज, मैंने मोडस पोनेंस बता दिया। नाउ मोडस टोलेंस। मोडस टोलेंस। मोडस टोलेंस में क्या होता है? इफ P implies Q and not P implies Q and actually it is not Q. So P implies Q and not Q, it will result not P. So this is modus tollens. Modus tollens. Okay. Now further the next rule is, इसका लॉजिकल फॉर्म क्या बनेगा? वी कैन रीराइट इट, P implies Q and not Q, it whole implies not P. जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल, it will give you tautology. Tautology means it in the last column you will get all T, so it will become tautology. Now sixth rule, modus ponens tollens हो गया, hypothetical syllogism हो गया. Now disjunctive syllogism. Disjunctive syllogism, इसमें क्या होता है? So if P और Q, disjunctive syllogism में है, if P और Q and not P, then what is the output? तो वो P या Q में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन P नहीं है, P नहीं है तो क्या होगा? Q होगा। So we have Q, so it is Q. It is known as disjunctive syllogism. इसका लॉजिकल फॉर्म क्या बने? P और Q and not P, this whole implies Q. Okay, either you can write this or you can write this, both will give you tautology. Now next, दो रूल और बता रहा हूं यहाँ पे। सो कंस्ट्रक्टिव डिलेमा एंड डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो छठा हो गया। सेवेंथ रूल है कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा में क्या होता है, देखना बहुत ध्यान से। P implies Q एंड R implies S। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट कंपेयर हो रहा है, P और Q, तो इसका आउटपुट आएगा Q और S। यहाँ कंपैरिजन फर्स्ट फर्स्ट में हुआ तो आउटपुट जो आएगा वो सेकंड सेकंड आएगा, Q और S। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। और एक लास्ट है डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। डिस्ट्रक्टिव डिलेमा, तो इसमें क्या होता है? जस्ट सी द रूल। इफ P implies Q एंड R implies S, ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे है नॉट Q और नॉट S। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या बनेगा? नॉट P और नॉट R। यहाँ पे Q और S की बात की जा रही है, तो आउटपुट में क्या आएगा? P और R। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, सॉरी डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। क्लियर? डिस्ट्रक्टिव डिलेमा, तो ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इन्फिरेंस। ठीक है, एक एग्जांपल तुम्हें और बता देता हूँ उस पर बेस्ड, कैसे इनको इम्प्लाई करना है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट टी इज अ वैलिड कंक्लूजन। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस, अब प्रीमाइसेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। प्रीमाइसेस है P implies Q कॉमा Q implies R कॉमा R implies S
कॉमा नॉट एस एंड पी और टी। एट द लास्ट आंसर तुम्हें आना चाहिए टी। ठीक है, तो देखो जरा वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, पी इंप्लाइज क्यू। तो पी इंप्लाइज क्यू ये तुम्हें गिवन है। ठीक है, दूसरा क्यू इंप्लाइज आर, ये भी तुम्हें गिवन है। तो ये फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया, तो इनका आउटपुट क्या आएगा फर्स्ट सेकंड का, पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज आर। तो बाई वन एंड टू इट विल बी पी इंप्लाइज आर। ये क्या बन गया, बाई फर्स्ट सेकंड। अच्छा, ये रूल कौन सा बन रहा है, पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज आर। जस्ट सी हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, सेकंड नंबर रूल ये वाला, P implies Q, this rule, P implies Q, Q implies R becomes P implies R, क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो यही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, अप्लाई कर दो। सो व्हेन यू अप्लाई इट विल बिकम व्हाट, यूजिंग हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। नाउ अगला फोर्थ, फोर्थ स्टेटमेंट क्या गिवन, देखो P implies Q हो गया, Q implies R हो गया, दोनों यूज हो गए, इन दोनों का आउटपुट ये आ गया। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे क्या गिवन है, R implies S, आर इंप्लाइज एस, ये गिवन था। ठीक है, अब इन दोनों को यूज करो, तो P इंप्लाइज आर, आर इंप्लाइज एस। तो पांचवा क्या बनेगा, P इंप्लाइज एस बाई थ्री फोर एंड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, फिर से लग गया ये। ठीक है, तो यहाँ हो गया P इंप्लाइज एस। अब आगे छठे में क्या गिवन है, नॉट एस, तो यूज नॉट एस। तो पांचवा छठा देखो जरा क्या बनेगा, P इंप्लाइज एस बट नॉट एस। क्या बन रहा है ये, देखो किस रूल में ऐसा आया था, ये देखो मोडस टोलेंस, P इंप्लाइज Q बट नॉट Q, आंसर क्या आएगा, नॉट P। तो वही यहाँ पे एप्लीकेबल है, P इंप्लाइज S बट नॉट S, तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉट P। आंसर क्या आएगा, तो सातवें में इसका आंसर बनेगा नॉट P। नॉट P कैसे आ गया, अच्छा ये चीज गिवन है, जो नॉट S है वो गिवन है, नॉट P कैसे आया, बाई फाइव सिक्स एंड मोडस टोलेंस, मोडस टोलेंस। ठीक है, अब इसके बाद आठवां स्टेटमेंट क्या गिवन है तुम्हें, इट इज गिवन P और T, इट इज गिवन P और T, सो अप्लाई हेयर P और T, ये तो गिवन है P और T। तो अब सातवां आठवां देखो जरा, सातवें आठवें की हेल्प से बताओ कंक्लूजन क्या आएगा। तो इट इज रीड एज P और T बट नॉट P, तो बाई इट विल बी T बाई बाई सेवन एट। रूल कौन सा लग रहा है यहाँ पे, P और T बट नॉट P, इट इज डिसजंक्टिव, इट इज डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो P और T, देखो डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, P और Q बट नॉट P, सो इट इज Q। क्लियर, सो एट द लास्ट वी कैन से इट इज T। तो यही बोला गया था कि कंक्लूजन कितना आएगा, T आएगा। सो दीज स्टेटमेंट्स इज वैलिड, स्टेटमेंट इज वैलिड, कंक्लूजन जो भी आया है वो कंक्लूजन वैलिड है, और कंक्लूजन इज वैलिड, कंक्लूजन इज वैलिड। So this is the way we do और we solve the premises। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ इसी का, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अच्छा ठीक है, डीएनएफ वाला एक बार फिर से बता देते हैं, रूल वन शो कर देते हैं, अभी मैं शेयर कर दूंगा, ये नोट शेयर दूंगा, सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, सेवन एट रूल और बता देते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, एक बार देख लो। क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। शो दैट, क्वेश्चन देखो रीड करो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है शो दैट टी इज वैलिड कंक्लूजन, मतलब आंसर में टी आना चाहिए, अगर टी नहीं आएगा तो वैलिड नहीं होगा। फ्रॉम प्रीमाइसेस, अब ये प्रीमाइसेस गिवन है, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे टी आइए, तो वन बाय वन प्रीमाइसेस लिखते जाओ, उनको सॉल्व करते जाओ साथ साथ। ठीक है, या तो तुम सबको साथ लिख करके सॉल्व कर लो, तो मैं वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने पहले पी इंप्लाइज क्यू लिया, क्यू इंप्लाइज आर लिया, दोनों लिख लिए, दोनों गिवन थे। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं।
पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर बिकम्स पी इम्प्लाइज आर बाई 1 2। रूल कौन सा लग रहा है? रूल है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। रूल क्या होता है? रूल देखो एक बार, ये देखो लिखा हुआ है, यह है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर, आंसर क्या आएगा? पी इम्प्लाइज आर। बस यही अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास P इम्प्लाइज आर। P इम्प्लाइज Q था, Q इम्प्लाइज R था, इन दोनों की हेल्प से बन गया P इम्प्लाइज R। क्या बोलते हैं? बाई 1 2 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रीमाइस उठाओ। ये है अगला प्रीमाइस, नेक्स्ट प्रीमाइस, इसको उसके नीचे लिख लो, R इम्प्लाइज S। तो अब इन दोनों में अप्लाई करो, P इम्प्लाइज R, R इम्प्लाइज S, इनका आउटपुट क्या आएगा? P इम्प्लाइज S आएगा बाई सेम। अब R इम्प्लाइज S गिवन था, तो 3 4 को यूज किया मैंने और हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यूज किया, वी गेट P इम्प्लाइज S। ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अगला प्रीमाइस क्या है? नॉट S, यूज नॉट S। तो नॉट S यूज किया मैंने, नॉट S जब यूज किया तो रूल देखो कौन सा बन रहा है? P इम्प्लाइज S एंड नॉट S। P का कंक्लूजन क्या है? S, लेकिन S नहीं हो रहा है तो नॉट P। इसका आउटपुट क्या आएगा? नॉट P। इसको क्या बोलते हैं? यूजिंग 5 6 एंड मोडस टोलेंस। मोडस टोलेंस का यही रूल है। देखो मोडस टोलेंस क्या लिखा है? P implies Q, नॉट Q, इट विल बी नॉट P। ठीक है, तो वही मैंने अप्लाई कर दिया, Q की जगह S है यहाँ पे बस। तो बाई मोडस टोलेंस ये आ गया। अब लास्ट प्रीमाइस क्या बचा है? लास्ट प्रीमाइस हमारे पास बचा है P और T। तो ये लिख लिया लास्ट प्रीमाइस, ये गिवन था लास्ट प्रीमाइस। ठीक है, अब सातवां और आठवां देखो साथ में, तो P और T एंड नॉट P। तो क्या बन जाएगा? P या T में कोई भी एक होता है, नॉट P है तो क्या बनेगा? T बनेगा। ये कौन सा रूल है? बाई 7 8 डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। सो आखिरी में टी आ रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन जो है वो वैलिड है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो मैसेज करो। रूल 7 और 8 डिस, मैं देख लेता हूँ क्या है, क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा, ये कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S। तो देखो जरा यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है वो P इम्प्लाइज P और R होगा। इट इज P और R। ठीक है, यहाँ करेक्ट कर लो। अभी मैं शेयर कर दे रहा हूँ इसे। ये P और R है इस जगह पे। ठीक है, P और R, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट कंपेयर हो रहा है ना, P और R, तो आउटपुट आएगा सेकंड सेकंड, Q और S। ये P और R है। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव में देखो जरा क्या है। डिस्ट्रक्टिव में इनका निगेशन यूज हुआ है। निगेशन मतलब जैसे P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S, तो सेकंड सेकंड देखो यूज हुए हैं, मतलब Q एंड S यूज हुए हैं, लेकिन इनके इनवर्सेस यूज हुए हैं, नॉट Q और नॉट S। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट P और नॉट R। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिलेमा और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसमें यूज होगा तो ज्यादा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, सेकंड क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा है कि S इज अ वैलिड कंक्लूजन। वैलिड कंक्लूजन, S जो है वो वैलिड कंक्लूजन है फ्रॉम द प्रीमाइसेस। फ्रॉम प्रीमाइसेस, अब प्रीमाइसेस गिवन है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ P implies Q, कॉमा P implies R, फिर कॉमा नॉट Q एंड R एंड S और P। सो ये प्रीमाइसेस गिवन है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रीमाइसेस उठाओ। P implies Q, ये पहला हो गया, ये गिवन है। फिर दूसरा क्या है? P implies R, ये भी गिवन है। इन दोनों कंबाइन कर दो तीसरे में, तो P implies Q एंड P implies R बाई 1 2 कंबाइन। इन्हों खाली कंबाइन कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। चौथा, तो चौथे में क्या गिवन है? देखो नॉट Q, नॉट Q
एंड आर, ये तो गिवन है। इसमें क्या कर सकते हैं पांचवे में, बाई डिमॉर्गन्स लॉ। सो नॉट क्यू और नॉट आर, बाई डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, यहां डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया। ठीक है, अब जरा तुम देखो, थर्ड वाला देखो और फिफ्थ वाला देखो, बताओ क्या हो सकता है, कौन सा रूल बन रहा है ये। तो ये बन रहा है डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। डिस्ट्रक्टिव डिलेमा कैसे बन रहा है, ये देखो डिस्ट्रक्टिव डिलेमा क्या लिखा है, P implies Q and R implies S, not Q not S। आउटपुट क्या बनता है, नॉट P नॉट R। डिफरेंस क्या है यहाँ वहां, R के प्लेस पर P लिखा है बस। तो R के प्लेस पर देखो यहाँ P लिखा है, ये देखो P implies Q, यहाँ होता क्या होता, R implies S होता, तो यहाँ P implies R है, तो R की जगह P लिखा है और S की जगह R लिखा है। तो क्या बन जाएगा ये, बाई डिस्ट्रक्टिव डिलेमा, छठा, बाई डिस्ट्रक्टिव डिलेमा एंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ सॉरी, थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड फिफ्थ डिस्ट्रक्टिव डिलेमा अप्लाई करो। देखो ये क्या लिखा है, नॉट क्यू एंड नॉट आर, तो ये बन जाएगा नॉट पी और नॉट पी। अब दोनों सेम है, तो सातवां ये आएगा केवल नॉट पी, क्योंकि बाई आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, P और P इक्वल टू P, इसी इसलिए क्या हो गया, नॉट P और नॉट P इक्वल टू नॉट P, यूजिंग दिस। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बनेगा, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये आइडेम्पोटेंट लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया नॉट P। उसके बाद अगला प्रीमाइस क्या गिवन है, अगला प्रीमाइस गिवन है S और P। तो अगला प्रीमाइस है S और P। अब जरा सातवां आठवां देखो, तो सातवें आठवें से क्या बन रहा है, सातवें आठवें से क्या बन रहा है, एस और पी एंड नॉट पी, तो आंसर क्या आएगा, नॉट एस, सॉरी, आंसर क्या आएगा, एस ओनली। कैसे आएगा एस ओनली, ये बन गया तुम्हारा डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। सो ये तो गिवन था, मैं लिख दे रहा हूं ये गिवन है। ठीक है, सो बाई 7 8 एंड डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो एट द लास्ट एस आ रहा है, तो कंक्लूजन इज वैलिड। ठीक है, तो ऐसे करना है हमें। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैसेज करो किसी को डाउट हो तो। एक बार शॉर्ट में सारे रूल दोबारा बता दें। अच्छा अंश, ओके, लास्ट वाला क्यू क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, रूल वन भी ठीक है। एक बार शॉर्ट में सारे रूल्स बता देते हैं, एक बार सिक्स्थ वाला स्टेप समझा, चलो ठीक है बता रहे हैं। देखो जरा, तो सिक्स वाले क्वेश्चन वन में बोल रहे हो कि क्वेश्चन टू में बोल रहे हो, लो क्वेश्चन वन में देख लो एक बार, फिर से क्वेश्चन टू में देख लो पहले, फिर क्वेश्चन वन का बताते हैं। क्वेश्चन टू में देखो जरा, सिक्स स्टेप कैसे आया। ये जो रूल लिखा हुआ है, मैं रूल यहाँ साइड में मेंशन कर दे रहा हूँ कि P implies Q एंड R implies S, अगर ये गिवन है और साथ में गिवन है नॉट Q और नॉट S, तो इसका आउटपुट आता है नॉट P और नॉट R, ये आउटपुट आता है। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो इन दोनों को। तो यहाँ क्या गिवन है, P implies Q, ये तो ठीक है, एंड अब R implies S की जगह क्या लिखा है, P implies R लिखा है। ठीक है, अब पांचवा नंबर देखो जरा, पांचवा स्टेटमेंट। तो पांचवें स्टेटमेंट में क्या है, ये तो बिल्कुल सिमिलर है, नॉट क्यू और नॉट एस, वो तो इसके अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, नॉट क्यू और नॉट आर, तो स्टेटमेंट ठीक है, वैलिड है। अब इन दोनों का कंक्लूजन क्या आएगा, तो इस रूल को तुम देखो दोबारा से और कंपेयर करके बताओ आंसर क्या आएगा। यहाँ पे नॉट पी और नॉट आर आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, नॉट पी और नॉट पी आएगा, दोनों तरफ पी है ना इस जगह पे, यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है, तो नॉट पी और नॉट पी आएगा। अब क्योंकि दोनों सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे, तो नॉट पी, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है,
आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ हो गया। अब ये एस और पी है, एस और पी एंड इन दोनों कंबाइन करो, तो ये रूल होता है तुम्हारा डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अभी लिखा था मैंने ऊपर, ये देखो डिसजंक्टिव सिलो दोबारा दिखा दे रहे हैं तुम्हें। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म ये देखो लिखा हुआ है, पी और क्यू नॉट पी, तो आंसर क्या आएगा? क्यू। बिल्कुल वही लिखा है यहाँ पे भी, एस और पी नॉट पी, तो क्या बचा? एस बचा। तो बाई 7 8 एंड डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, एस आंसर आ गया, और यही हमें लाना भी था। एस इज वैलिड स्टेटमेंट देखो, एस इज वैलिड कंक्लूजन, तो एस आ गया एट द लास्ट। अगर एस ना आता तो ये वैलिड ना होता, एस आ रहा है इसलिए कंक्लूजन क्या है? वैलिड है।